Let us quickly begin today's session. Today we are going to study the question answers for the topic that we were doing. The chapter that we were studying is atoms and molecules, and we will be doing the question answers, the NCERT question answers from the chapter. Well, NCERT question answers are very important from the examination point of view. ऐसा कहते हैं कि NCERT हमारे सब्जेक्ट की गीता है, तो जितना भी नेसेसरी ज्ञान है जो हमें सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, सो दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर NCERT सिलेबस. तो इसलिए उसको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो if you have the book in front of you, you can open up the book and keep your notebook and pen handy, ठीक है, ताकि आप भी उन्हें सॉल्व कर सकें साथ साथ. Alright, so there are some questions, page number 32, and the first question is, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, right? So students, you need to know the formula for sodium carbonate ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो आपको सिर्फ ये बताना है law of conservation of mass जो है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे. If you know the formula for these compounds, then it's okay. Alright, otherwise you can simply write the name reaction. Alright, do not write it in symbols. You can also write the name reaction. The name reaction would be like this. Okay, acetic acid plus sodium carbonate gives sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water. ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो नया नहीं बनता, ना ही पुराना ख़त्म होता है. तो जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का मास होगा. तो अब यहाँ पर देखें रिएक्टेंट्स का मास क्या है. तो रिएक्टेंट्स में है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम which is equal to 11.3 gram. So mass of reactants in all is 11.3 gram. Now law of conservation of mass states that the mass of the reactants will be equal to the mass of the products, right? कोई नया मास नहीं बनेगा, ना ही कोई पुराना खत्म होगा. अब मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमें दिया हुआ है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. This is mentioned in the question. This information is provided in the question itself. और जब हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो then it gives 11.3 gram. So when the mass of the reactants is equal to the mass of the product, then the law of conservation of mass is established. ठीक है. Next question. Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1 to form water, right? We already know this, right? Dalton's atomic theory states कि एक particular compound, एक particular elements के react होने से बनेगा और वो react करेंगे एक fixed proportion. ठीक है, जितना एक react करेगा उसके लिए जितना दूसरे की ज़रूरत है, अगर उसका पहले वाले का डबल होगा तो दूसरे वाले का भी डबल हो जाएगा. ठीक है, तो what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? बहुत सिंपल है, आपको दे रखा है रेशियो, हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 है. ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम्स है. 1:8 रेशियो का मतलब यही है. ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट वाला जो टर्म है, राइट, फर्स्ट है हाइड्रोजन
तो जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, जब भी रेशियो इस्टेब्लिश करते हैं, प्रोपोर्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो ध्यान रहे फर्स्ट वाली टर्म विल रिलेट टू द फर्स्ट और द न्यूमरेटर इन द रेशियो एंड द सेकेंड टर्म विल रिलेट टू द डिनोमिनेटर और द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट कोलन से पहले या न्यूमरेटर में है 1, तो दिस विल बी an equivalent proportion for hydrogen and similarly oxygen will relate to 8, right? तो इसका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन इज 8 ग्राम, राइट? इफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम देन ऑक्सीजन इज 8 ग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास यूज्ड ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन का कौन सा कितना मास इस्तेमाल होगा अगर रिएक्ट कंप्लीटली करने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल की गई है। इफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड देन हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। सो सिंपली 1 ग्राम के साथ में ज़रूरत है 8 ग्राम्स की, राइट? 8 ग्राम्स की। तो 2 ग्राम के साथ ज़रूरत होगी 16 ग्राम की और 3 ग्राम के साथ ज़रूरत होगी 24 ग्राम, राइट? So over here you can see hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass. 3 gram of hydrogen will react completely with 24 gram of oxygen gas, right? So 24 gram is the correct answer. These are some small questions, right? These will possibly come in 1 mark. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कौन से डाल्टन ने कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट दिया था जिससे कि प्रूव हो रहा है? तो डाल्टन्स पॉस्टुलेट दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस स्टेटमेंट से, इस पॉस्टुलेट से कि एटम्स जो है वो ना ही नए बनाए जा सकते हैं ना ही पुराने ख़त्म होते हैं। ठीक है, दे जस्ट रिएक्ट, राइट, एंड दे फॉर्म और दे डिकम्पोज। ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई नया एटम ना ही बनता है ना ही कोई एटम जो है ख़त्म होता है। सो दिस इज व्हाट डाल्टन्स पॉस्टुलेट सेज एंड दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? ठीक है, अब law of definite proportion कौन सा बताता है? तो atoms combine in fixed ratio to form compounds. ठीक है, डाल्टन ने बताया, डाल्टन्स थ्योरी सेज दैट एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वहाँ पे प्रूव हो रहा है डाल्टन की थ्योरी से। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, राइट? तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो करंट स्टेट में हमें पता है इट इज डिफाइंड एज इक्वल 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो मास है एक एटम का, उसका 1/12 पार्ट जो है विच इज इक्वल टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर उसे बोलते हैं यूनिफाइड मास, और आजकल जो है वो बताया जाता है U से। ठीक है, पहले इसका सिंबल कुछ और था पर अब ये बताया जाता है स्मॉल u से। Why is it not possible to see an atom with naked eyes? ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो हमारी जब चारों तरफ सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से बनी हुई, तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रीज़न वो इंडिविजुअल नहीं है, राइट? इंडिविजुअल नहीं है, वो किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में है। ठीक है, वो किसी से रिएक्ट करे हुए हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से, अपने सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, एक तो रीज़न ये, साथ ही उसका साइज जो है, एटम का साइज, वी नो दैट द साइज ऑफ एन एटम is approximately 10⁻⁹ meters. ठीक है, which is so small that it is out of the visibility range of a naked eye. ठीक है, तो जो हमारी नॉर्मल जो आंखें जो साइज तक देख पाती हैं और आइडेंटिफाई कर पाती हैं चीज़ों को, उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, so that is why we cannot see it with the naked eye. ठीक है, the size of an atom is so small that it is not possible to see it with the naked eye. Also the atom of an element does not exist independently, right? क्योंकि वो इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई कि हाँ ये कार्बन का है या ये नाइट्रोजन का है एटम का। वी कैन नॉट जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ। ठीक है, तो अब मेरे को इनके फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बहुत ईजी है, क्या करना है आपको,
ठीक है। एक तो आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वैलेंसी टेबल की, तो वैलेंसी टेबल जो आपसे शेयर की गई यू शुड वेरीफाई इट, राइट, यू शुड लर्न इट, तो उसको याद करना ज़रूरी है, बिकॉज वैलेंसी टेबल वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें पता है सोडियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है, अच्छा सोडियम ऑक्साइड में है कौन कौन से एलिमेंट्स, तो एक तो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी कौन सी फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, तो ऑक्साइड फॉर्म में है, इसका मतलब वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन की, और सोडियम जो है वो मेटल है, उसकी वैलेंसी है 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, Na लिखेंगे सोडियम, उसके ऊपर लिखेंगे उसके सर के पास में राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखेंगे Na प्लस, plus sign, right? So plus denotes that its valency is 1 and the charge would be positive. So this means it will show tendency of losing an electron. Next इसके सामने लिखेंगे, ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, ठीक है, तो सोडियम है और ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी है 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, इसका मतलब ऑक्सीजन के सर के पास में ऐसे लिख देंगे 2 माइनस, और फिर क्रिस क्रॉस मेथड लगा देंगे, तो जो ऑक्सीजन का जो कोएफिशिएंट है, जो ऊपर आपने 2 माइनस लिखा है, जो वैलेंसी है, उसको उठा करके रख दीजिए सोडियम के राइट हैंड साइड पे इस तरीके से, ठीक है, सोडियम के पाँव के पास, और राइट हैंड साइड पे रख दीजिए 2, और क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो 1 को लिए आपको बताया कि 1 की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड दैट वहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा है तो दैट इज़ 1। सो ऑक्सीजन की जो पैर के पास में आपको कुछ लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, सो दैट मीन्स दैट 1 ऑक्सीजन एटम इज ओवर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या क्या है, एक तो एल्यूमिनियम, द मेटल इज एल्यूमिनियम, एंड क्लोराइड इज फ्रॉम क्लोरीन, राइट, सो क्लोरीन और क्लोराइड फॉर्म है, इसका मतलब -1 वैलेंसी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो आप सिंपली ऐसे लिखेंगे एल्यूमिनियम और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी, फिर क्लोरीन और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी, और क्रिस क्रॉस मेथड लगा देंगे, तो 1 आ जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे और 3 आ जाएगा क्लोरीन के नीचे, ठीक। आई बिलीव दिस इज सिंपल नाउ। सो नेक्स्ट देखेंगे सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड के अंदर हमें पता है सोडियम की वैलेंसी 1 एंड सल्फर की वैलेंसी या सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो अगेन सिमिलरली सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, इट विल बिकम Na2S। The name of the compounds will tell you what component, what elements it has, ठीक है, तो जो भी नेम है उसका, उसके नाम में ही और उसका छुपा है क्या, कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर उसकी क्या वैलेंसी है, ठीक है, इसीलिए नाम रखे जाते हैं। तो ये सब नाम आपको अब याद भी रखने हैं, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑलराइट, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो OH- ग्रुप वो कहलाता है, वो होता है, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या है, अच्छा हाइड्रोक्साइड क्या है, तो हाइड्रोक्साइड इज OH-, क्यों, क्योंकि उसके अंदर देखेंगे कि एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने की हैं कि वो नाम जो है वो क्यों ऐसा रखा गया है। सो दिस विल कम विद प्रैक्टिस एंड विद लर्निंग, राइट, व्हेन यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द रूल्स ऑफ हाउ दीज नेम्स आर केप्ट, सो देन यू विल कम टू नो कि हाइड्रोक्साइड है तो कौन सा ग्रुप है, राइट, कि क्लोराइड है तो क्या है, लाइक दैट। Next is so this is valency for Mg or magnesium is 2 and hydroxide group has a valency -1, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 क्यों है ये आपको बताया था। तो ऑक्सीजन हैज़ वैलेंसी -2 एंड हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी +1, ठीक है। तो -2 + 1 इज -1, तो ओवरऑल जो चार्ज जो उन पे बच जाता है दैट इज -1। तो ऑब्वियसली -1 है तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा, और मैग्नीशियम जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन जो देने की टेंडेंसी रखता है, क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑब्वियसली उसको 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी एक मॉलिक्यूल के अंदर। सो दैट वुड बी MgOH होल ट्वाइस, हियर इट इज। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे ऊपर हमने क्या किया था, नाम से और फॉर्मूले बनाए थे, अब हमें क्या है, फॉर्मूले दिए हुए हैं और उनके नाम बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको आयंस के नाम भी पता होने चाहिए कि कौन से आयन है, क्या नाम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज Al2SO4 होल थ्राइस, बहुत ईजी है। Al2 इज एल्यूमिनियम ग्रुप, राइट, और SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस, SO4 इज सल्फेट। ठीक है, SO4 इज सल्फेट आयन एंड Al इज एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है यहाँ पर 3। ठीक है, और वो कैसे पता चला, जब क्रिस क्रॉस मेथड को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो SO4 ग्रुप के आप देखो पाँव के पास जो 3 लिखा है, इसका मतलब जो मेटल है उसकी वैलेंसी है 3+। ठीक है, जो पहले लिखा गया है वो होता है मेटल और उसकी वैलेंसी है 3+। सिमिलरली अगर फर्स्ट एलिमेंट की देखें तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर एल्यूमिनियम और उसके पाँव के पास में लिखा है 2। तो 2 से ये समझ में आ रहा है जो सल्फेट ग्रुप है या सल्फेट आयन है उसकी वैलेंसी है -2। क्यों? क्योंकि बाद वाले की वैलेंसी होती है माइनस, शुरू वाले की वैलेंसी होती है प्लस। ठीक है, और वो कितनी होती है, वो नेक्स्ट वाले के पाँव के पास में क्या लिखा हुआ है वो उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो वही क्रिस क्रॉस मेथड है, उसको पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, अब हमने अब उसको अलग कर दिया। लाइक तो क्रिस क्रॉस मेथड था कि उसका जो है उसके पास में और उसकी वैलेंसी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेगा, अब उसी को जस्ट अपोजिट कर दिया है, सो दैट वी आर एबल टू सी कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट आयन जो है उसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, और प्लस माइनस कैसे पता चलता है, जो पहले होता है वो मेटल होता है, उसकी वैलेंसी होती है प्लस, जो बाद वाला है वो नॉन मेटल होता है और वो जो होता है उसकी वैलेंसी माइनस में होती है। वो टेंडेंसी शो करेगा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की, और मेटल जो होता है वो टेंडेंसी शो करता है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CaCl2, नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसका जो नाम है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो SO4-2 जो है वो है सल्फेट ग्रुप या सल्फेट आयन, और Al इज फॉर एल्यूमिनियम, सो द नेम वुड बी एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, एंड व्हाई? सो आप देखेंगे उसके अंदर कैल्शियम है मेटल और क्लोराइड ग्रुप है, 2 क्लोरीन के ग्रुप हैं। ठीक है, इसलिए और इसके क्या अलावा कोई और पॉसिबल है कैल्शियम और क्लोरीन का? नहीं, तो एक ही पॉसिबल है, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज K2SO4। K2SO4 वुड बी पोटेशियम, यस पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो SO4 क्या है, -2 वैलेंसी। ठीक है, SO4 की -2 वैलेंसी है, और K की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, तो इसीलिए SO4 जो है वो एक ही ग्रुप काम में आया है, एक ही आयन SO4 का एक 2 पोटेशियम के एटम से या एलिमेंट से वो जुड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई द नेम वुड बी पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज KNO3। ठीक है, तो KNO3 क्या होता है, NO3 इज नाइट्रेट आयन, NO3 इज नाइट्रेट आयन, NO2 इज नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो नाम रखा गया है NO3 जो है नाइट्रेट आयन, और K इज पोटेशियम, तो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और फाइनल दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CO3 की वैलेंसी है -2, कैल्शियम की वैलेंसी है +2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो -2 और +2 आपको लिखे हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि -2 और +2 जो है कॉमन निकल गए हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जो करा वो एक ही कैल्शियम एक कार्बोनेट आयन से रिएक्ट करेगा। अब कार्बोनेट आयन जो है वो होता है CO3-2 और कैल्शियम है Ca+2। तो यहाँ पर यही दोनों फॉर्म है, Ca+2 की फॉर्म में है, और कार्बोनेट जो है वो CO3-2 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। कोई भी फार्मूला है जिसको सिंबल्स के रूप में आप इसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? आपको पता है 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, ठीक है। तो 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S। सिमिलरली PO4 -3 आयन के अंदर कितने हैं? तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और P के नीचे देखो कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो फॉस्फोरस का 1 एटम है, तो 1 और +4 गिव्स 5, राइट। सो 5 एटम्स आर प्रेजेंट इन PO4 3 माइनस आयंस, ठीक है। उसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है वो ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, तो नंबर ऑफ एटम्स इस वक्त कितने हैं इसमें? मात्र 5, ठीक है। तो 4 तो ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर मास जो है ये कुछ का और निकलवा रहा है, ठीक है। एक तो हम आपको बताते हैं, बाकी के आपको घर पे करने हैं, ठीक है। H2 में आपको पता है 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब 2 एटम्स का जो मास है वो निकालना है, तो आपको पहले अगर देखो ये तो है कैसा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, और साथ ही साथ एक ही तरीके के 2 एटम्स इसमें कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो एक हाइड्रोजन एटम का क्या मास है? एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास क्या हो जाएगा? 1 × 2। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2 AMU या फिर 2U, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल u, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए O2। तो O2 का मास क्या होगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए, ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम इस्तेमाल हुए हैं इस मॉलिक्यूल को बनने के लिए। 2 ऑक्सीजन एटम काम में आए हैं। तो अब एक एटम का मास क्या है? एक एटम का मास है, ऑक्सीजन एटम का मास है 16, ठीक है। तो 2 का मास हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद रखना है, एटलीस्ट जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके तो आप याद कर ही लीजिए, ठीक है। मास, एटॉमिक मास विद एटॉमिक नंबर एंड देयर सिंबल्स एंड नेम, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए फर्स्ट 20 के, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है, क्लोरीन का भी ऐसे निकल जाएगा, एक क्लोरीन एटम का मास इंटू 2 CO2, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आ गया। CO2 का मास निकालने के लिए हमें क्या करना है? कार्बन एटम है इसके अंदर एक और 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो हमें एक कार्बन का निकालना है, मास क्या होता है? कार्बन का मास है 12, और O2 में हमें निकालना है कि O2 का मास कितना है। तो O2 का मास होता है 32। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा 44 यूनिट्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, एटॉमिक मास ऑफ C12, ठीक है, कार्बन 12 प्लस, ठीक है, ये लाइन ठीक कर लेना, यहाँ पर होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम का मास एक का कितना होता है? 16, तो 2 का कितना होगा? 32 प्लस कार्बन 12 का एक एटम का मास क्या होता है? 12, तो 12 प्लस 32 इज 44 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप सबका निकाल लेंगे। एक लास्ट वाला और देख लीजिए, CH3OH। तो इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसमें मास, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक कार्बन का एटम का मास प्लस 4 हाइड्रोजन एटम के मास प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 का हो जाएगा 4, तो 12 प्लस 4 16, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आंसर वुड बी 32 यूनिट, CH3OH। ओके, सो आंसर इज 32 यूनिट्स लास्ट वाले का, ठीक है। तो सिमिलरली यू जस्ट नीड सिंपल मैथमेटिक्स एंड रिमेम्बरिंग स्किल्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट, एंड दे विल
श्योरली कम इन योर एग्जाम, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और 1 नंबर का हार्डली यू शुड टेक 30 seconds टू डू इट एंड स्कोर दैट वन, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड Na2O K2CO3, ठीक है। गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ जिंक। अच्छा, ये जो हैं कुछ एटॉमिक मासेस जो हैं आपको दिए भी जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप शुरू के 20 इसलिए याद आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, सो दैट क्वेश्चन आपका इजीली हो जाए, ठीक है। अदरवाइज पेपर में आपको प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम में पर आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद भी रख लेंगे एटलीस्ट फर्स्ट 20, ठीक है। तो पहला जो है वो है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिंक ऑक्साइड के अंदर क्या क्या है, जिंक और ऑक्सीजन। तो एक एटम जिंक का क्या मास है, 65 यूनिट्स, और एक एटम ऑक्सीजन का क्या मास है, 16 यूनिट्स। 65 + 16 81 यूनिट्स, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के अंदर है 2 तो सोडियम आयन और 1 ऑक्सीजन आयन, ठीक है। तो अब उसका मास क्या जाएगा, 2 इंटू सोडियम का मास क्या है, सोडियम का मास दिया हुआ है 23, तो 2 इंटू 23 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 इंटू 23 इज 46 प्लस 16 इज इक्वल टू 62 यूनिट्स। सिमिलरली द लास्ट वन, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3। K2CO3 में हमें मिल रहे हैं 2 पोटेशियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन, और 1 कार्बोनेट आयन जो है उसके अंदर क्या है, कार्बोनेट आयन के अंदर 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये ऐसे, ये इसका केमिकल फार्मूला है और इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो K2 का मास निकालेंगे तो K का हमें पता है 39 यूनिट्स, पोटेशियम के 1 एटम का मास है 39 यूनिट्स, तो पोटेशियम के 2 यूनिट्स का मास हो जाएगा 2 इंटू 39। फिर कार्बन के 1 एटम का मास हमें पता है 12 यूनिट्स, तो कार्बन का 1 एटम का मास यहाँ लिख देंगे 12 यूनिट्स। एंड ऑक्सीजन के 1 एटम का मास हमें पता है 16 यूनिट्स, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास हो जाएगा 3 इंटू 16। अब जब तीनों को ऐड कर देंगे 78 + 12 + 48, तो आंसर हो जाएगा 138 यूनिट्स, विच इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दिस K2CO3 पोटेशियम कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में क्या समझा रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर एंड दिस इंडिकेट्स 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स एटम वेज 12 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में का वेट कितना है, 12 ग्राम्स। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब एक एटम का क्या मास है, ठीक है। तो आपको पता है 1 मोल का मास है, 1 मोल कार्बन एटम्स का मास है 12 ग्राम। 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं किस में, 1 मोल में, ठीक है। और 1 मोल का मास है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, और कौन सी यूनिट है, यूनिट रहेगी ग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम में ही पूछ रहा है। तो 12 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो एक एटम का मास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो कितना बहुत छोटा साइज है, बहुत ही
कम मास होगा, विच इज़ 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, बहुत छोटा। नेक्स्ट इज विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, ठीक है। गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड आयरन इज 56, ठीक है। देखिए अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस में ज़्यादा हो, ठीक है, खुद सोच करके देखें आप, ठीक है। 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, जिसके एटम्स जो हैं, ठीक है, वो बड़े होंगे, भारी होंगे मतलब, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम दोनों चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिसमें मास ऑफ एक एटम जो है वो कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज़्यादा होंगे अगर वेट सेम है तो। ऐसे समझ लीजिए कि 1 kg शुगर, ठीक है, 1 kg आपने शुगर लिया, ठीक है, और 1 kg आपने एप्पल ले लिया, ठीक है। तो 1 kg एप्पल जो है वो एक जगह रखा है, 1 kg शुगर जो है वो एक जगह रखा है, ठीक है। अब आपको दोनों में से बताना है, ठीक है, जस्ट जनरल, ठीक है, बिल्कुल आपको काउंटिंग नहीं करनी है, कोई मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि वो एप्पल जो है उनके जितने भी एप्पल्स हैं 1 kg के अंदर, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, उनका साइज जो है वो बराबर है, ठीक है, दे आर ऑल आइडेंटिकल इन साइज, ठीक है। द साइज ऑफ ऑल द एप्पल्स आर इक्वल एंड 1 kg शुगर, तो ऑफकोर्स शुगर ग्रेन्स जो हैं उनके भी जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो बराबर होगा। तो अब आपको खुद इमेजिन करना है कि पार्टिकल्स ज़्यादा किस केस में होंगे या एटम्स ज़्यादा किस केस में होंगे, ठीक है। तो एटम्स ज़्यादा उस केस में होंगे जिसमें मास ऑफ 1 पार्टिकल कम है, ठीक है। तो एप्पल्स के केस में नहीं होंगे, शुगर के केस में पार्टिकल ज़्यादा होंगे 1 kg में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na होंगे 100/23, ठीक है। तो हमें पता है मास क्या है Na का 23, तो 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, 4.34 मोल्स। तो इतने एटम्स होंगे किसमें, सोडियम, 100 ग्राम सोडियम में, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स इन आयरन, तो वो होगा 100/56 इक्वल टू 25/14 और अप्रॉक्सीमेटली 1.79 मोल्स, ठीक है। तो 1.79 मोल्स एटम्स होंगे किसमें, 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na इज मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ Na कंटेन मोर नंबर ऑफ, इसलिए 100 ग्राम जो सोडियम में ज़्यादा आइटम्स होंगे, जैसा आपको बताया था। तो सोडियम जो है उसका साइज छोटा है, वजन कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स उसके ज़्यादा होंगे, और आयरन जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसके नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. अब हमें बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, ठीक है। अब आपको परसेंट कंपोजिशन बतानी है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है देखते हैं, ठीक है। तो बोरोन की क्या परसेंटेज है, बोरोन है 0.096 ग्राम, ठीक है। तो बोरोन की परसेंटेज आ जाएगी 40, ठीक है। देखो टोटल सब्सटेंस कितना है, टोटल कंपाउंड कितना है 0.24 ग्राम, उसमें बोरोन कितना है, बोरोन है 0.096 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100, ठीक है। तो ये निकल जाएगी बोरोन की परसेंटेज। नेक्स्ट इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, तो ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम, ठीक है। और टोटल कंपाउंड कितना है 0.24 ग्राम, 0.144 ग्राम है क्या ऑक्सीजन और 0.24 ग्राम है टोटल कंपाउंड, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कैसे, तो
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो उस पर ऑक्सीजन परसेंटेज निकल जाएगी उस कंपाउंड की। तो उस कंपाउंड के अंदर 60% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं हम मास परसेंटेज कितनी है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। और ये कैसे निकाला था हमने? बाय वेट। नेक्स्ट इज when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ग्राम तो कार्बन लिया है और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो फाइनली जो बन रहा है वो है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? देखो, इसके लिए सिंपल सी बात समझते हैं कि लॉ जो डाल्टन ने एक लॉ दिया कि द रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट इन इक्वल प्रोपोर्शंस, और या जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट विल बी फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट विल नॉट चेंज द प्रोपोर्शन, राइट, इट विल रिएक्ट इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो अगर 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ठीक है, और 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, तो 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन जो है और 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लें और 50 ग्राम ऑक्सीजन लें तो क्या रिएक्शन रहेगी ये बताना है। तो भाई देखिए, सिंपल सी बात है, रिएक्शन जो है वो अभी भी सेम ही होगी। सिंपली जो है 3 ग्राम जो कार्बन है वो रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से। अब 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन तो खत्म हो गया ना, कार्बन जो है वो रिएक्ट करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ऑक्सीजन भी है उसमें से 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम ऑक्सीजन काम में आ गई और वो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अब बनी जाएगी उसमें जो भी कंटेनर है। और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा उसमें रिमेनिंग ऑक्सीजन बच जाएगी। कार्बन तो इस्तेमाल हो गया, कार्बन नहीं बचेगा, पर ऑक्सीजन जो है वो रिमेनिंग बच जाएगी। तो 50 ग्राम में से 8 ग्राम काम में आ गई है, तो 42 ग्राम उसमें ऑक्सीजन बच जाएगी। और साथ में क्या बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 11 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, C+O2 gives CO2, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है रिमेनिंग ऑक्सीजन वो वहीं मौजूद रहेगी। और ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जो कि कहता है कि जो एटम्स जो हैं वो फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, फॉर्म करते हैं या रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हों। ठीक है, और आयंस क्या होता है, जिनके ऊपर चार्ज हो, जिनसे इलेक्ट्रॉन या तो निकल चुका हो या उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया हो, तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज। और वो डिपेंड करेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज। द आयन विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स हों वो पॉलीएटॉमिक आयन है। और ये उसके एग्जाम्पल, ये देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि PO4 3- फॉस्फेट आयन, नाम है इसका फॉस्फेट आयन। ठीक है, CO3 2-। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, CO3 2- में है, कार्बोनेट आयन है इसका नाम, और इसके अंदर एटम्स होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट इज NH4+ आयन। तो NH4 क्या ग्रुप है, NH4 इज अमोनियम ग्रुप। ठीक है, तो अमोनियम में आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यूजुअली आप क्या देखेंगे कि जिनके भी नाम के आगे ऑक्साइड आ रहा है, ठीक है,
या 8 आ रहा है, ठीक है, तो 8 जो है वो बनाएंगे सॉल्ट्स, ऑक्साइड जो है वो बनाएंगे ऑक्साइड्स, ठीक है, तो इनके साइन क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, -1, -2, -3 ऐसे। और जिनके आगे आता है नाम में ईएम, ईएम मतलब वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तो ईएम जैसे आता है तो अमोनियम, हाइड्रोनियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये टेंडेंसी क्या रखते हैं, ये टेंडेंसी रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो चार्ज कैसा होगा उनके ऊपर, प्लस, ऐसे आयंस के ऊपर चार्ज मिलेगा प्लस। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वापस से वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, एक कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो है कौन सा, इसका सिंबल होता है Mg और वैलेंसी इज 2 +2 बिकॉज इट्स अ मेटल। एंड क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी है -1, तो 2 के साथ में ऑफ कोर्स क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 2 क्लोरीन आयन लगेंगे टू रिएक्ट विद 1 मैग्नीशियम आयन, ठीक है, तो एक मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करने के लिए 2 क्लोरीन आयन की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2। ओके, इस तरीके से बाकी के भी क्वेश्चंस कर लीजिए। नेक्स्ट इज गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, अब ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, कंपाउंड के, और अब इनके अंदर हमें बताना है एलिमेंट्स, ठीक है, तो अगर आपने इस पहले ये नाम नहीं सुने हैं, ठीक है, तो अब सुन लीजिए और याद भी ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसके अंदर क्या होता है, क्विक लाइम में होता है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होता है क्विक लाइम। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर है हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, CO3 इज कार्बोनेट आयन, ठीक है, और देखेंगे आप तो इसके अंदर क्या क्या है मिल रहा है हमें, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बन C एंड ऑक्सीजन O3, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट आपको बताया था क्या होता है, सल्फेट होता है SO4-2 और पोटेशियम इज K, पोटेशियम इज K, ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट के अंदर हो जाएगा पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, K2SO4, ठीक है, ये अभी ऊपर पढ़ा भी था हमने, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज ओके, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है, मोलर मास मतलब क्या होता है, एक मोल उस एटम्स का, मतलब एक मोल एटम्स का किसी भी एलिमेंट का क्या मास होगा, ठीक है, उसे मोलर मास कहते हैं, ठीक है, और डिनोट किस में होता है वो, ग्राम्स में, ठीक है, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है, ठीक है, एक एटम की बात नहीं हो रही है, एक मोल एटम्स की बात हो रही है, जिसको हम डिनोट करते हैं ग्राम्स में। इथाइन होता है C2H2, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H2 हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, ठीक है। इथाइन का फॉर्मूला हमने देखा C2H2, तो उसके अंदर 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक मोल के अंदर उतने ही, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर C2H2 में 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक मोल में उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो निकाल लेते हैं अपन, और वही एक मोल का ग्राम में मास होगा, तो 2 × 12, ठीक है, कार्बन का मास है 12, तो 2 का मास होगा 12 × 2, और हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 का मास होगा 1 × 2, ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 24 + 2 विच इज 26, और यूनिट क्या होगी, ग्राम्स, ठीक है, ये होगा उसका एक मोल, मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 26 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है, 8 एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं तब जाकर के एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। S8, ठीक है, एक सल्फर का मास है 32
एक सल्फर एटम का मास है 32, तो 8 का मास कितना हो जाएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल 4। तो फास्फोरस जो है वो है टेट्रा एटॉमिक, एक फास्फोरस का मास है 31, तो 4 का मास हो जाएगा 124 ग्राम। तो एक मोल का मास कितना हो गया 124 ग्राम। तो 1 मोल फास्फोरस मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली HCl का, तो H का है 1, क्लोरीन का है 35.5, तो आंसर 36.5 ग्राम। और नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हाइड्रोजन का है 1, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16। टोटल कंबाइन जब करेंगे, ऐड करेंगे 1 + 14 + 48। 48 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक नहीं, ऑक्सीजन 3 एटम है, तो 3 × 16। ठीक है, तो आंसर इज 63 ग्राम्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या हो जाएगा? देखो, नाइट्रोजन जो है उसका एक एटम का मास है 14। ठीक है, तो 1 मोल मतलब हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक AMU मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो यही बोलते हैं मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है 1 AMU। तो ऐसे याद रख लो कि एक ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, और हर का मास 1 है, इसलिए वो 1 ग्राम बनेगा। सबका मास है 1 AMU, तो इसलिए वो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ठीक है, तो 4 मोल में, ठीक है, 1 मोल के अंदर मास होगा 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 यूनिट्स, 27 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होगा 27 ग्राम। तो 4 मोल्स का मास कितना होगा? 27 × 4। आंसर इज 108 ग्राम। एंड द फाइनल वन, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड इज Na2SO3। आपको बताया मैंने कि SO4 होता है सल्फेट ग्रुप, SO3 होता है सल्फाइड ग्रुप। ठीक है, तो 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक का मास कितना है, एक एटम का मास कितना है। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो पहले 1 मोल का मास निकाल लेते हैं। चलिए, तो 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मास हो जाएगा 2 × 23। 2 × 23 क्यों? 23 इज द मास ऑफ सोडियम एटम, और 2 एटम्स हैं इसलिए 2 × 23। सल्फर का मास है 32। एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 48। 46 + 32 + 48, ये हो गया 1 मोल, 127 ग्राम हो गया 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मास। तो 10 का कितना हो जाएगा? अरे इंटू 10 कर ले क्या? सिंपल सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 126 × 10 इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड molecules. ठीक है, द आंसर इज 1260 ग्राम, 1.26 किलोग्राम, और या फिर 1260 ग्राम। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू मोल। ठीक है, ये मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए और कन्वर्जन भी। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में हमें बताना है कि कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन एटम्स हैं तो उसका मतलब क्या है? वो 1 मोल।
ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है सर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है उसका एक मॉलिक्यूल का मास क्या है 32 ग्राम। याद रखिए यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो है ऑक्सीजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन गैस क्या है O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो O2 मॉलिक्यूल का एक का मास कितना है 32 यूनिट्स। तो एक मोल का मास कितना जाएगा 32 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हमें जो मास दे रखा है इसे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास को। तो मास हमें दे रखा है 12 ग्राम, जो अवेलेबल है मास कितना है 12 ग्राम है। और एक मोल में कितना मास होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3/8 या 0.375 मोल। नेक्स्ट इज 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम वाटर के अंदर और कितने मोल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है या एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है 2 + 16। 2 किसका है हाइड्रोजन का, 2 × 1, और 16 किसका है एक ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का उसका मास है 18 ग्राम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइड कर दीजिए 20/18। तो 20 क्या है टोटल हमारे पास पानी कितना मौजूद है 20 ग्राम, और मोलर मास क्या है तो एक का मास है 18। तो आंसर हो जाएगा 10/9 या 1.111111 मोल्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उसका क्या मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका मास कितना है, तो 12 फॉर कार्बन एंड 2 × 16 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स है, एक का 16 है तो 2 का हो जाएगा 2 × 16। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44 ग्राम। अब बात करें हम कि जो मास दिया हुआ है 22 ग्राम में तो कितने मोल्स होंगे, तो 22/44 इक्वल्स टू 0.5 मोल्स, ठीक है। तो आधा मोल हो गया ना, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में अगर एक मोल है तो 22 ग्राम में आधा मोल ही होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स 0.2 मोल का क्या मास है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 16 ग्राम, ठीक है। हमें पता है कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 ग्राम। तो मास ऑफ 0.2 मोल कितना जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 × 16 और ये आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो 0.2 मोल्स का मास कितना होगा 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास होगा 3.2 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा 2 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, इनका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक मोल का मास आ जाएगा 18 ग्राम। अब हमें निकालना है 0.5 का मास, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। तो 18 × 0.5 इज 9 ग्राम। तो आधे मोल का मास कितना हो जाएगा 9 ग्राम। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of sulfur S8 present in 16 ग्राम of sulfur। नेक्स्ट आपको बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो सल्फर मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद होंगे, वही है मूल कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में, ठीक है। तो आपको ये पता है मास ऑफ सल्फर गिवन है 16, ठीक है, और मोलर मास क्या है सल्फर का, ठीक है। तो एक मोल के अंदर कितना मास होगा, दैट इज 32 × 8, क्योंकि एक सल्फर एटम में मास है। एक सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें तो सल्फर मॉलिक्यूल होता है S8, यहाँ पे दिया भी है सल्फर S8। एक सल्फर मॉलिक्यूल है ऑक्टा एटॉमिक S8 उसका मास है। तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा 8 × और एक सल्फर एटम का मास कितना है 32। तो 8 × 32 विच इज 256। तो उससे आप निकाल सकते हैं कि उसमें मोल्स कितने हैं।
तो मोल्स निकालने के लिए क्या किया आपने, 16/32 इंटू 8, तो आंसर आ गया 16/256 या फिर 1/16। तो 1/16 क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स 1/16 सॉल्व करेंगे तो 1/16 सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.0625। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.0625 मोल्स में कितने होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.0625 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 विच विल गिव 3.76 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे 16 ग्राम सल्फर में। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब हम कैलकुलेट करके आंसर, फाइनल आंसर जो बताएंगे तो उसको हमेशा साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइंटिफिक टर्म जो है उसमें ही कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें ध्यान रहे तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, डेसिमल से पहले एक डिजिट हो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो। डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद डबल डिजिट, और उसके बाद जो भी है वो 10 की पावर्स में लिखेंगे, चाहे वो 10 की पावर में प्लस है या चाहे 10 की पावर में माइनस है। जैसे ऊपर बात करें, ये रहा, ठीक है, ये रहा आंसर। जैसे तो यहां पर जो भी आंसर आया उसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है 3.76। ठीक है, लाइक डेसिमल से पहले 1 यूनिट और डेसिमल के बाद 2 यूनिट, मतलब 2 डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके और फिर बाकी रिमेनिंग जो भी है उसको 10⁻⁴ में और कन्वर्ट कर देंगे, चाहे 10⁻⁴ कोई प्लस में है या डिनोमिनेटर में है तो 10⁻⁴ कोई नेगेटिव में। Next is calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide। 0.051 ग्राम aluminium oxide में कितने aluminium ions होंगे। Simply वही मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। The mass of an ion is the same as that of an atom of the same element। Atomic mass of Al। ठीक है, तो आयन और एलिमेंट कि एटम का मास सेम होता है। और वो क्यों सेम होता है, क्योंकि जो अंतर क्या होता है आयन में और एटम में, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर भी भाई जब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो फिर भी आयंस का मास जो है हम एटम के मास से इक्वल मानते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो मास ऑफ एन एटम है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत गुना ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वही मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक ट्रक और एक चाहे पतली सी पिन। ठीक है, छोटी सी पिन। ठीक है, तो उन दोनों में अगर मास का कंपैरिजन करें तो अगर आप 1 या 2 या 3 पिन बढ़ा देंगे ट्रक के अंदर, है ना, 2-3 पिन ट्रक के अंदर बढ़ा देंगे तो क्या ट्रक के ऊपर कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा? नहीं। ठीक है, तो उसका मास अभी भी वही बताएगा जितना वो पहले बता रहा था। ठीक है, बहुत बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब करना कैसे क्वेश्चन को, तो हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है वो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने उसमें। फिर एक का मास हमें पता है 27, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट है जो Al2O3 का है वो 102 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स, उसका मास कितना है 102 ग्राम। ठीक है, तो 102 ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेन्स 2 × 6.022 × 10⁻23 Al3+ आयंस। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर होंगे कितने 2 × क्यों 2 क्यों, क्योंकि भाई एक का
एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एक नहीं दो एल्यूमिनियम आयंस है Al2, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम जो मॉलिक्यूल है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो एल्यूमिनियम आयंस है, ठीक है। तो 2 × 6.022 × 10⁻⁴, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर एक होता तो सिर्फ 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते एल्यूमिनियम के, लेकिन इस वक्त एटम्स जो हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। एंड तो 0.051 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो उसको पहले तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। तो ग्राम्स में हो जाएगा 51/1000, ठीक है। ये ग्राम्स में हो गया। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं कितने 102 ग्राम्स ऑफ 102 ग्राम्स में मौजूद है एक मोल, इसलिए तो हमें पता चला कि 51.051 में ये 51/1000 इतने ग्राम्स में कितने होंगे, तो 2 × 6.022 × 10⁻23/102। तो ये तो आ गया एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, ठीक है, एक ग्राम में कितने हैं, और इंटू 0.051/1000, तो ये आ जाएगा कि उतने ग्राम में कितने हैं। तो आंसर इज 6.022 × 10⁻20 एल्यूमिनियम 3+ ions, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर दी NCERT question answers, and I hope you were able to understand it well, and you will be able to remember these important question answers as well. So I'll be seeing you in the next class then. If you have any doubts or questions, please go ahead and let me know on the numbers and the email address provided, right? So I'll be happy to help you with your queries. So I'll see you in the next class. Till then, take care. I'm signing off. Bye bye.